You are watching Poonch Live. میرے اندر سے میرے دل نے مجھے جواب یہ دیا، مجھے اندر سے جناب والا میرے سوال کا جواب یہ ملا۔ جواب یہ تھا کہ اللہ والے یہ اپنے خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ بازاروں کو چھوڑ کر، یہ سٹیوں کو چھوڑ کر، یہ شہروں کو چھوڑ کر، یہ گاؤں دیہات کے اندر یا بیابان جنگلوں کے اندر اپنا بسیرا ڈالتے ہیں، جہاں انہیں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں انہیں جناب والا ہلانے دلانے والا کوئی نہ ہو، یہ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ نے کہا ان اولیاء کرام نے جنگلوں کے اندر اپنا بسیرا ڈالنے کے بعد اللہ سے رشتہ اس قدر مضبوط کیا، عبادت اس قدر کی، اللہ کو راضی اس قدر کیا کہ ان کے دلوں میں اس ولی کی محبت کو ڈالتا ہے، پھر وہ کھینچا چلا جاتا ہے ولی کے دربار پر، چلا آتا ہے ولی کے دربار پر، دوڑا آتا ہے ولی کے دربار پر۔ اور جناب والا اطہر حسین نے اپنے رشتے کو اللہ سے اس قدر مضبوط کیا تھا کہ ساری دنیا کی میں حضرت اطہر حسین شاہ کی محبت اللہ نے ڈال کر کے لوگوں کو اس پہاڑی پر بھی بلایا، کہا وہاں حضور اطہر حسین کا ایک دیوانہ، حضور اطہر حسین کا ایک غلام جناب والا سائیں پرویز ہے، وہ تنہا نہ رہ جائے، وہ اکیلا نہ رہ جائے، رہتا اندھیرے میں ہے، رہتا جنگلوں میں ہے، رہتا جناب والا بیابانوں میں ہے، لیکن ہم اسی جگہ پر اس کے ساتھ دنیا کو کھڑا کر کے اتنی بڑی بارات سجا دیں گے، دنیا دیکھے گی کہ اطہر حسین نے اللہ سے رشتہ مضبوط کیا تھا اور پھر لوگوں کا رشتہ اطہر حسین کے ساتھ کیسے جوتا چلا گیا۔ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے، سادات کرام تشریف لائے، ان کے ساتھ ساتھ میڈیا کے احباب تشریف لائے اور بھی جتنے اعضاء تشریف لائے، سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو اولیاء کاملین کا پیغام ہے اور مشن ہے، وہ مشن یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، بددیانتی سے بچنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے، زبان سے، پاؤں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ نبی پاک سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان اس آدمی کا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے پاؤں سے اور جس کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ یہاں جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ساتھ میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان تک میں ایک بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو سیدہ کائنات پل صراط سے گزریں گی، تو جو ہی وہ پل صراط سے گزریں گی تو غیب سے آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، نگاہوں کو جھکا دو، سیدہ کائنات آنے والی ہیں۔ تو اہل محشر انبیاء اولیاء سب ہوں گے، سب کے سب نظریں نیچے جھکا دیں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا سب سے آگے ہوں گی، اور صبح قیامت تک جتنی عورتیں سیدہ کائنات کی سیرت کا پیکر ہوں گی، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوں گی، وہ ساری کی ساری قیامت کے دن سیدہ کائنات کے پیچھے ہوں گی۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ ساری عورتیں جنت کے اندر داخل ہو جائیں گی۔
रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या अव्वल जलाल वल इकराम। या अल्लाह हम सब तेरे आजिज़ बंदों ने मिल करके यहाँ पे हाजिर होकर के खत्मात मुअज़्ज़मात पढ़े, कलिमात तय्यबात पढ़े, विर्द व वज़ाइफ़ पढ़ा, बिलखुसूस खत्म अंबिया शरीफ पढ़ा गया। इसके अलावा सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ी, आयत बय्यिनात पढ़ी हैं। या अल्लाह बिलखुसूस हज़रत साहब ने हज़रत सैयद अतहर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए उनकी निस्बत से या अल्लाह उर्स मुक़द्दस का एहतमाम किया गया। इन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने लोगों ने इस उर्स मुक़द्दस के अंदर हिस्सा लिया है या अल्लाह सब की तरफ से हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दूर दराज से जितने अहबाब चल के हाजिर हुए सबकी हाजिरी कबूल फरमा। जो कुछ पढ़ा गया है इन सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अतियतन हम सब की तरफ से आका करीम रऊफ रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व अकरमु तस्लीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरबाउन क़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तोहफ़े हदीये पेश करते मक़बूल व मंजूर फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद अज़वाज सहाबा ताबईन खुलफ़ाए राशिदीन अइम्मा फ़ुक़हा अव्वलीन आखिरीन मुहद्दिसीन मुफ़स्सिरीन सबकी बारगाह में पेश करते मक़बूल व मंजूर फरमा। ख़ासतन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में पेश करते मक़बूल व मंजूर फरमा। सय्यदाए कायनात की बारगाह में पेश करते मक़बूल व मंजूर फरमा। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरीन की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। दीगर सहाबाए किराम अहले बैत अतहार अइम्मा फ़ुक़हा अव्वलीन आखिरीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की बारगाह में पेश करते मक़बूल व मंजूर फरमा। सैयदुल औलिया महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाह सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ग्यारहवीं वाले पीर की बारगाह में तोहफ़े हदीये पेश करते मक़बूल व मंजूर फरमा। अता खास तौर पे बहुत से लोग हार्ट में, शुगर में, कैंसर में, बीपी में, लाइलाज बीमारियों के अंदर मुलविस है। या अल्लाह मुस्तफा का सदका उनको शिफा अता फरमा। अहले बैत का सदका उनको शिफा अता फरमा। औलिया कामिलीन का सदका उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह हम सब लोगों को इस मूजी और मोहलिक बीमारी से महफूज फरमा। या अल्लाह रसोली के अंदर जो तकरीबन 17 आदमियों का इंतकाल हुआ उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो कोई मामलात हैं उसको भी सामने फरमा। अगर कोई बीमारी है उसका खात्मा कर दे। अगर कोई साजिश है तो उसको सामने ला। या अल्लाह बाकी जितने लोग हैं उनको महफूज फरमा। हम सब लोगों को ऐसी मूसी और मोहलिक बीमारियों से बचा। इस पूरे इलाके पे करम फरमा, इस पूरी बस्ती पे करम फरमा, मोहल्ले पे करम फरमा। जितने लोग दूर दराज से चल करके आए हैं या अल्लाह एक वली कामिल की निस्बत से आए हैं, वली कामिल की अकीदत लेकर के आए हैं, वली कामिल की मोहब्बत लेकर के आए हैं, या अल्लाह इन सब का आना कबूल फरमा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि बेशक औलिया अल्लाह उनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं और कोई गम नहीं। वो लोग जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया उनके लिए दुनिया में भी बशारत है और आखिरत में भी बशारत है। अल्लाह ताला के कलिमात को कोई तब्दील नहीं कर सकता। हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूमन आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि जब क़यामत का दिन कायम होगा तो 70,000 या 7 लाख लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। पूछा गया वो कौन है, तो आपने इरशाद फरमाया कि बेशक जो लोग दुनिया में आए उन्होंने तकवा इख्तियार किया, यानी अल्लाह के वली बन गए। वली कहते हैं अल्लाह ताला के दोस्त को, वो जो दुनिया में आकर के साहिब मारिफत बन जाता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है, वली बन जाता है, तो उसका आलम फिर ये है कि ये जहाँ हो या वो जहाँ हो, हर जहाँ के अंदर फिर वो बेखौफ और बेगम हो जाया करता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला का दोस्त हो जाया करता है। औलियाए कामिलीन साहिबान मारिफत, उन्हीं के अंदर एक मर्द कलंदर वली कामिल हज़रत सैयद अतहर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सेड़ी के अंदर रहते थे और फिर वहाँ उनका विसाल हुआ और उसके बाद फिर आज बिफज़्लिही ताला तकरीबन 4-5 साल हो चुके उनको, उनके विसाल को। आज हज़रत किबला मोहतरमुल मुकर्रम साईं परवेज़ साहब किबला, इन्होंने अपने आस्थाने के ऊपर हज़रत सैयद अतहर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुक़द्दस बहुत ही शान और शौकत के साथ यहाँ पे मनाया गया। और बिफज़्लिही ताला इस इलाके से, बल्कि मंडी से, मेहंडर से, सुरनकोट से और जम्मू तक से दूर दूर से लोगों ने इस उर्स मुक़द्दसा के अंदर हाज़िरी दी। जहाँ पे बुजुर्ग आए वहाँ जवान भी, बच्चे भी और माएँ बहनें भी, ख़वातीन उम्मत, उन्होंने भी हाज़िरी दी। और ख़ास तौर पे हमारे जवानों ने, उलमाए किराम ने, सादात किराम ने यहाँ पे हाज़िरी दी। और हाज़िरी देने के बाद फिर खूबसूरत प्रोग्राम हुआ और उसमें जो औलियाए कामिलीन का मिशन है वो मिशन भी आवाम तक रखा गया। आखिर में हम तमाम अहबाब तक, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन तक ये खुसूसी मैसेज पहुँचाना चाहते हैं हज़रत साहब के ज़रिए से और अहले खाना की तरफ से और पूरे इस इलाके की तरफ से कि यहाँ पे रोड की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर रोड की फैसिलिटी होती तो फिर लोग इससे ज़्यादा होते,
रोड न होने की वजह से भी हज़ारों की तादाद में लोग आए। रोड होती तो बहुत ज़्यादा होते, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये खुसूसी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसकी तरफ यहाँ पे तवज्जो दें और यहाँ जो रोड की दिक्कत है उस मसले को भी हल करें। साथ ही साथ में यहाँ पानी का मसला है, उसके लिए भी खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ जितने लोग भी रहने वाले हैं सबको रोड की और पानी की फैसिलिटी भी मिल सके। आखिर में तमाम अहबाब के हज़रत साहब की तरफ से हम मुश्कुर व ममनून हैं, और साथ ही साथ में आप मीडिया वाले अहबाब जो दूर दराज से चल करके आए और यहाँ पूरे प्रोग्राम की कवरेज की है, सबके हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और सबके लिए दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।